Christopher Marlowe's play titled The Tragic History of the Life and Death of Dr. Faustus is commonly shortened and simply referred to as Dr. Faustus. Published in 1604, this play depicts the clashing views between the medieval period and the emerging Renaissance. It shows how drive Faustus leads to his own destruction by ditching humility and spiritual goodness for power, wealth and other materialistic gains. The underlying message of the play is that our choices in life decide our soul's trajectory and whether it will reach salvation or damnation. Faustus is a German scholar who is not interested in traditional forms of knowledge, medicine, logic, law and theology. He is looking for something more. He finally decides to learn the dark art of magic. Two angels, evil angel and good angel, come to pay a visit to Faustus. While the evil angel supports him to learn magic, the good angel encourages Faustus to leave magic and start reading scriptures. Faustus decides to side with evil angel and starts learning magic. Faustus's friends, Valdez and Cornelius, support his decision. They teach him magic and tell him that he could become popular and wealthy by using it. After learning from them, Faustus is able to summon a devil named Mephistopheles from hell. On being asked by Mephistopheles why he has been summoned, Faustus says he would like 24 years of service from him. Mephistopheles tells Faustus about his boss Lucifer. He tells that Lucifer was earlier a god's angel, but due to pride, he was now a devil in hell. Faustus proposes to give his soul to Lucifer in exchange for 24 years of service from Mephistopheles. Lucifer agrees to the deal and wants Faustus to sign on a document in his own blood. Faustus obeys and cuts his arm to sign the document with his blood. However, the blood starts to solidify. This makes Faustus doubt if he has taken the right decision. However, as soon as Mephistopheles melts the blood using fire, Faustus's doubts fade away and he sells his soul. As soon as he does so, the words Homo fuge, meaning "O man, fly," in Latin, appear on his arm. Mephistopheles bestows Faustus with a book of spells and answers his questions. However, Mephistopheles refused to answer when Faustus asked who created the universe. This makes Faustus doubt his decision again. Mephistopheles calls Lucifer and another devil named Beelzebub. Lucifer asks Faustus to stop doubting and instead enjoy the entertainment he has got in store for him. Lucifer puts up a brilliant show by bringing in the personification of the 7 deadly sins, namely pride, covetousness, wrath, envy, gluttony, sloth, and lechery. Faustus enjoys it thoroughly. Faustus now begins to use magic for traveling. He and Mephistopheles land in a court in Rome where Pope Adrian is present. Mephistopheles makes Faustus invisible so he could play pranks with the Pope. He creates a ruckus by stealing food from the Pope's banquet and punching him in his ears. He also helps a German named Bruno escape Pope's punishment using his magical powers. Faustus returns back to Germany and receives a note of thanks from the German Emperor, Charles V, for helping Bruno. He also expresses his desire to see Faustus create Alexander the Great. Faustus honors his wish and conjures an image of Alexander. While Charles is supremely impressed, a guest named Benvolio mocks Faustus's magical powers. As a punishment, Faustus gives him horns. Meanwhile, a townsman named Robin agrees to serve Faustus's servant, Wagner, in exchange for learning some magic tricks. Robin and his friend Rafe try to procure free booze using magic and also summon Mephistopheles, who turns them into animals for their foolish action. A group of scholars at the university are hinted about Faustus's nearing death. They ask Faustus to summon Helen of Troy, the world's most beautiful woman according to Greek mythology. Faustus does so and also falls for her beauty. As Faustus dreads his death, he confesses his wrongdoings to the fellow scholars, who promise to pray for him. The two angels appear again before Faustus. The evil angel shows him hell and the endless tortures. The good angel shows him heaven and how its door is now closed for him because of his greed. Faustus begs for mercy and requests to not be taken to hell. However, it's too late. As the clock strikes midnight, a group of devils takes Faustus's body to hell. The next day, the scholars find Faustus's torn body and decide to hold a funeral for him. आइए अब हम डॉक्टर फॉस्ट्स को हिंदी में भी समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। क्रिस्टोफर मार्लो का नाटक, जिसे द ट्रैजिक हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्ट्स कहा जाता है, सामान्यतः डॉक्टर फॉस्ट्स के रूप में संक्षेपित किया जाता है।
1604 में प्रकाशित, ये नाटक मध्यकालीन काल और उभरते रेनेसेंस के बीच टकराव को दर्शाता है। ये दिखाता है कि डॉक्टर फॉस्ट्स ने आत्मविनय और आध्यात्मिक भलाइयों को छोड़कर शक्ति, धन और अन्य भौतिक लाभों की दिशा में अपने नाश की ओर कैसे बढ़ता है। नाटक का आत्म संदेश है कि हमारे जीवन में किए गए चयन हमारी आत्मा का मार्ग निर्धारण करते हैं और यह स्वर्ग या नरक की ओर जाएगी। फॉस्ट्स एक जर्मन विद्वान है जो पारंपरिक ज्ञान और चिकित्सा, तर्क, कानून और थियोलॉजी में रुचि नहीं रखता है। उसकी इच्छा है कि वह कुछ और सीखे। उसे अंत में काले जादू का अभ्यास करने का निर्णय करते हैं। दो देवताएं इविल एंजल और गुड एंजल फॉस्ट्स के पास आती हैं। जबकि इविल एंजल उसे जादू सीखने का समर्थन करता है, गुड एंजल फॉस्ट्स को जादू छोड़कर शास्त्र पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। फॉस्ट्स इविल एंजल के साथ रहने का निर्णय करता है और जादू सीखना शुरू करता है। फॉस्ट्स के दोस्त वाल्डेस और कॉर्नेलियस उसके निर्णय का समर्थन करते हैं। उन्होंने उसको जादू सिखाया और बताया कि उसे इसका उपयोग करके वह लोकप्रिय और धनी हो सकता है। उनसे सीखने के बाद फॉस्ट्स को हेल से एक शैतान नामक मेफिस्टोफेलीज को बुलाने की क्षमता है। उन्होंने उसे जादू सिखाया और कहा कि वह इसका उपयोग करके लोकप्रिय और धनी बन सकता है। उनसे सीखने के बाद फॉस्ट्स को हेल से एक शैतान नामक मेफिस्टोफेलीज को बुलाने की क्षमता है। मेफिस्टोफेलीज से पूछने पर क्यों उसे बुलाया गया है, फॉस्ट्स कहता है कि वह उससे 24 वर्षों की सेवा चाहता है। मेफिस्टोफेलीज फॉस्ट्स को अपने बॉस लूसीफर के बारे में बताता है। उसका कहना है कि लूसीफर पहले भगवान के दूत थे, लेकिन अभिमान के कारण वह अब नरक में एक शैतान बन गए हैं। फॉस्ट्स लूसीफर को अपनी आत्मा देने का प्रस्ताव रखता है, जिसका उल्लेख दस्तावेज पर होता है। लूसीफर सौदे से सहमत होते हैं और चाहते हैं कि फॉस्ट्स उसे 24 वर्षों की सेवा के लिए एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें। फॉस्ट्स इस पर अनुसरण करता है और अपने ही खून से दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी बांह काटता है। हालांकि खून जमने लगता है। इससे फॉस्ट्स को संदेह होता है कि क्या उसने सही निर्णय लिया है। हालांकि जैसे ही मेफिस्टोफेलीज आग का उपयोग करके खून को पिघलाता है, फॉस्ट्स के संदेह दूर हो जाते हैं और वह अपनी आत्मा बेचता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, उसकी बांह पर होमोफुगी, जिसका अर्थ है ओमन और लेट, मेफिस्टोफेलीज फॉस्ट्स को एक जादुई किताब और उसके प्रश्नों के जवाबों से अविभाजित करता है। हालांकि जब फॉस्ट्स ने पृथ्वी का निर्माण किसने किया, ये सवाल किया, तो मेफिस्टोफेलीज ने जवाब देने से इनकार किया। इससे फॉस्ट्स को फिर से अपने निर्णय पर संदेह होता है। मेफिस्टोफेलीज ने लूसीफर और एक और शैतान बीलिजबब को बुलाया है। लूसीफर फॉस्ट्स से संदेह करना बंद करने और उसके बजाय उसे उसने रखे हुए मनोरंजन का आनंद लेने की सलाह देता है। लूसीफर एक शानदार शो लाते हैं जिसमें 7 घातक पापों का प्रतीकात्मक रूप में अभिव्यक्ति किया जाता है, जैसे कि गर्व, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, भूख, आलस्य और काम। फॉस्ट्स इससे पूरी तरह से आनंदित होता है। अब फॉस्ट्स यात्रा के लिए जादू का उपयोग करना शुरू करता है। वह और मेफिस्टोफेलीज रोम की एक दरबार में पहुंचते हैं जहां पोप एड्रियन मौजूद हैं। मेफिस्टोफेलीज फॉस्ट्स को अदृश्य बनाता है ताकि वह पोप के साथ मजाक कर सके। उसने पोप के भंडार से भोजन चुराकर और उसके कानों में मुक्का मारकर कलह उत्पन्न की। उसने एक जर्मन नामक ब्रूनो को भी उसकी जादुई शक्तियों से पोप के सजा से बचाने में मदद की। फॉस्ट्स जर्मनी वापस लौटता है और जर्मन सम्राट चार्ल्स वी से ब्रूनो की मदद करने के लिए एक धन्यवाद का संदेश प्राप्त करता है। उसने अपनी इच्छा जताई है कि फॉस्ट्स को अलेक्जेंडर द महान बनाने की। फॉस्ट्स ने उसकी इच्छा को समर्पित किया और एक सिलेंडर की छवि उत्पन्न की। जबकि चार्ल्स को बहुतायत से प्रभावित हुआ, एक ऐसा मेहमान जिसका नाम बेनवोलियो है, ने फॉस्ट्स की जादुई शक्तियों का मजाक बनाया। दंड के रूप में फॉस्ट्स ने उसे सींग दे दी। उसी बीच एक गांव वाला जिसका नाम रॉबिन है, ने फॉस्ट्स के सेवक वेगनर की सेवा करने के बदले में कुछ जादू ट्रिक्स सीखने का सहमति दी। रॉबिन और उसका दोस्त रैफे ने जादू का उपयोग करके मुफ्त शराब प्राप्त करने का प्रयास किया और मेफिस्टोफेलीज को बुलाया, जिन्होंने उन्हें उनकी मूर्खता के कारण जानवरों में बदल दिया। एक विश्वविद्यालय में कई विद्वान फॉस्ट्स के आसपासी मौत के बारे में संकेत मिलता है। उन्होंने फॉस्ट्स से हेलेन ऑफ ट्रॉय, ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार विश्व की सबसे सुंदर महिला, को बुलाने का आग्रह किया। फॉस्ट्स ने ऐसा किया और उसकी सुंदरता में मग्न हो गया। जब फॉस्ट्स अपने मौत से घबराता है, तो उसने विद्वानों को अपनी गलतियों का इतराफ किया, जिन्होंने उससे प्रार्थना करने का वादा किया। 2 देवताएं फॉस्ट्स के सामने फिर से आती हैं। एविल एंजल ने उसे नरक और अनवरत पीड़ाएं दिखाईं। गुड एंजल ने उसे स्वर्ग दिखाया और बताया कि उसके लालच के कारण अब ये दरवाज़ा उसके लिए बंद हो गया है। फॉस्ट्स दया की बिना मानकर विनती करता है और हेल में जाने से बचाने का अनुरोध करता है।
हालांकि ये बहुत देर हो चुका है। जब घड़ी मिडनाइट को चीखती है, एक समूह शैतान फॉस्ट्स के शरीर को हेल में ले जाता है। अगले दिन विद्वान फॉस्ट्स के फाड़े गए शरीर को पाते हैं और उसके लिए एक श्राद्ध समारंभ करने का निर्णय करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही हमारी टीम डेली आपको इंग्लिश लिटरेचर की मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज है वो आती रहेगी। बट अगर आपके तरफ से सपोर्ट हुआ, मतलब स्टूडेंट्स कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर नीडी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके गाइज। और आपके मोटिवेशन से अगर मिलती रही तो स्टूडेंट्स एंड किड्स को भी मोटिवेशन मिलेगी ऐसे स्टोरी को पिक्टोरियल तरीके से बनाने में फ्रेंड्स, बिकॉज एक स्टोरी को ऐसे बनाने में बहुत हार्डवर्क करना होता है। अच्छा कंटेंट के द्वारा ऐसी स्टोरी बनाई जाती है गाइज ताकि आपको ये एग्जाम में भी बेनिफिशियली हो। सो फ्रेंड्स, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए गाइज। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।